عشق آتش سعدیہ راجپوت۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں، اور 2 گز زمین تلے تو باہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر جی نہیں پاتے؟ کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں۔ اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع نقصان درج کرتے رہے، تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا؟ اور کیا کوئی ایسا فارمولہ بھی ہے جو بتا سکے کہ نفع فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور نقصان تو بس نقصان ہی دے سکتا ہے؟ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہے۔ کب ہے؟ یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ ہم تو عدم میں بہت آرام سے تھے، پھر اس زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے، اور آزمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نہ نقصان کی، مگر حیرت ہے پھر بھی ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے ہیں۔ زندگی کو تو جیسے گزارنا تھا ویسے ہی گزر جاتی، کم از کم وقت رخصتی خرچ تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کھاتا بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی دوسرے کا تو کبھی ہمارا۔ صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم آتے ہیں سیدھے راستے کو خود اپنے لیے راستے پوشیدہ بناتے ہیں، اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، یہ شب وروز ماہ و سال کا پرپیچ سفر قدرے آسان ہو بھی سکتا تھا، ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے در و بام پہ ویرانی ہے، جس کے ہر طاق پہ رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد ہو بھی سکتے تھے، اب جو دیکھے تو بہت صاف نظر آتے ہیں، سارے منظر بھی پس منظر بھی۔ ایک اس دیر خالی کا صلہ کیا ہوگا، جو ہونا تھا ہوا ہو بھی چکا، لائنیں کٹتی رہی لفظ بدلنے کے سبب، حاصل عمر یہی چاند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل ہونے پائی۔ ملیحہ فاروقی، 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی، کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ۔ وہ مڑی اور آواز کی سمت دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلایا، فائزہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کے سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئے۔ بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو تانیہ، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پہ چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھے سجی سنوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بوکے پیش کیا، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نہیں نظر آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھی، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال و احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر حیران بنتے ہوئے بولی، تمہارے کزن کی۔ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا، فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں، بالآخر تانیہ نے چڑ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بن کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ جوڑ دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی اور کیا مصروفیات ہو سکتی ہیں؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ جڑتے۔ تانیہ نے اسے گھورا، مگر پھر گستاخ نظر اندازی کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دیکھ کر فائزہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شایان کی مدر کزن ہے۔
مدر کی کزن ہے۔ اچھا، سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت وجود پر پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شایان آ گیا۔ شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت، تانیہ نے شایان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی ہے، فائزہ بے سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی، جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بتک کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفعہ ہو جاؤ۔ ہاں، ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اسکور مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا بنا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتہ اس ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ تانیہ۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجرے سنوارے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی، واقعی بہت صدا اسے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی ایمبرائڈری کے شفون کی شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میجیکل جیولری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو آج بال بھی پین کی قید سے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے۔ شایان کو اس کے قدرے ڈائریکٹ جملے پر ہلا نہ کہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محفوظ سی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا ہے؟ وہ فوراً بولی۔ نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دو، سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے آئی برو اکچا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا، تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنے بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گمگیر لہجہ، سحر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا واہلانہ پن، تانیہ کو لگا شایان آج اسے وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریس فل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی۔ ممی تو بیزی ہیں، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کروانے لگی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا، یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجنٹ بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ پوری طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ ہی از دی لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف ٹیکنیٹری، اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپوایا تھا کمال کا تھا۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اینی ویز، MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کو آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے۔
ओके बेटा, मुझे कुछ और मेहमानों को भी वक्त देना है, तुम लोग एंजॉय करो। वो नाकाबिले फ़हम अंदाज में मुस्कुराते हुए चले गए तो तान्या को एकदम से शयान का ख्याल आया। वो पलटी मगर वो वहाँ नहीं था। उसने तेज़ी से नज़र दुराई मगर शयान कहीं नज़र नहीं आया। क्या बात है फ़ाइज़ा? फ़ाइज़ा ने उसे कुछ ढूंढते पाकर पूछा। शयान अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? अरे हाँ, यह अचानक कहाँ गायब हो गया? तानिया उसकी बात को अनसुना करते हुए शयान की तलाश में गेट तक आई तो उसने शयान को हाल से बाहर जाते देखा। शयान, बात सुनो! वो बेसाख्ता पुकारे मगर शयान ने जैसे सुना ही ना हो और बाहर निकलता चला गया। तानिया उसके पीछे लपकी मगर जब वो बाहर आई शयान अपने बाइक पर बैठकर जा चुका था। उस ख़याल ने तान्या को असारदा कर दिया। वो कुछ कहे बगैर ही चला गया था। वो कितनी ही देर से अंधेरे में बेहिस व हरकत खड़ी रही। वो कब से शयान के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी मगर दूसरी तरफ फ़ोन बंद था। आ जाओ। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर उसने बुलंद आवाज़ में बेजारी से कहा और फिर से मोबाइल नंबर मिलाया। जी मामा। दरवाज़ा खोलकर अपनी मम्मा को अंदर आते देखकर उसने मोबाइल नीचे कर दिया। दोबारा खदीजा को तुम्हें बुलाने के लिए भेज चुकी हूँ, आकर खाना खा लो। तानिया, उन्होंने उसे सरज़निश की। आप चलिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वो ज़रा शौक हो रही थी। आखिर शयान ने मोबाइल ऑफ क्यों किया है? जब से ऑफिस से आई हूँ फ़ोन से चिपक कर बैठी हो। आखिर किसको फ़ोन कर रही हो? एक दोस्त को जिस एडिटर ने परसों से अपना मोबाइल बंद रखा हुआ है और मैं उससे भी बड़ी इडियट हूँ जो बार बार उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ। मोबाइल से नज़र हटाते बगैर तानिया ने कहा और दोबारा नंबर डायल करने लगी। तो मम्मा ने आगे बढ़कर मोबाइल उसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रख दिया। फ़ोन बाद में भी हो सकता है, अब चलो, तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आ गए? वो गोद में रखा तकिया बेड पर रख कर उठ गई। हाँ, और तुम 5 मिनट में नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारे पापा को भेजती हूँ। वो धमकियाँ मेज़ अंदाज में कहकर कमरे से चली गई तो तानिया ने भी फटाफट मुँह हाथ धोया और बाल क्लिप में जकड़ कर नीचे डाइनिंग में आ गई और कुर्सी घसीट कर बैठते हुए नूरहुदा से कहा, क्या बात है पापा, आज आप 9 बजे ही घर नज़र आ रहे हैं। बस बेटा, घड़ी ने धोखा दे दिया, वरना तो मैं तो 12 बजे के बाद ही घर आया था। शायद अटक गई है। तान्या के शरारती अंदाज में पूछने पर वो संजीदगी से बोले। आखिर में यूं इंग्लिश आखिर में यूं उंगली से कलाई पर बंधी घड़ी को ठोकने लगे जैसे घड़ी वाकई अटक गई हो। मरियम उनके मजाक को समझकर खफगी से बोली, क्यों, 12 बजे से पहले घर आने पर पाबंदी है? मज़े से हंसती तान्या ने एकदम मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी और महफूज अंदाज में नूरुल हुदा की तरफ देखने लगी जो पहले ही संजीदगी से बोले, नहीं, लेकिन पाबंदी तो 12 बजे के बाद आने पर भी है, नहीं है। मरियम सिलक कर ज़ोर से बोली। बहादुर, पानी अभी तक टेबल पर नहीं पहुंचा। बस पापा, अब खैरियत इसी में है कि चुप करके खाना खा ले वरना आपको मम्मा से ज़बरदस्त डांट पड़ सकती है। मशवरा तो बहुत अच्छा है तानिया, पर बात यह है कि तुम्हारी मम्मा को मुझे डांटना पसंद है और मुझे उनसे डांट सुनना। नूरुल हुदा, खाना ठंडा हो रहा है। उनके टोकने पर नूरुल हुदा ने फर्माबरदारी से सामने रखी प्लेट में सालन डाला और चपातियों के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारे साहबजादे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वहाँ। मरियम ने सामने टीवी की तरफ इशारा किया जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। दोनों ने टीवी की तरफ देखा और तानिया हैरत से बोली, टीवी में? टीवी में नहीं, स्टेडियम में, दोस्तों के साथ मैच देखने गए हैं। वो तानिया की प्लेट में सालन डालने लगी। जवाब तक खाली थी। दादा जान भी साथ गए हैं। वो अपने कमरे में हैं। आज फिर डिप्रेशन का दौरा पड़ा है। सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। कितनी बार उनका दरवाज़ा बजा चुके हैं मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। दादा जान के इस तर्ज अमल के सभी आदि थे। नूरुल हुदा किसी तासुर के बगैर खाना खा रहे थे लेकिन तानिया ने सामने रखे खाने को हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं दादा जान को एकदम से क्या हो जाता है, क्यों खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर अगले कई दिनों तक उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं रहता। पापा, आपको पता है दादा जान ऐसा क्यों करते हैं? तानिया अफसुर्दगी से नूरुल हुदा से पूछने लगी। खाना खाते एक पल को नूरुल हुदा का हाथ का फिर तल्खी से बोले, होंगे उमर रफ्ता के कुछ ज़ख्म जो भी कल करते होंगे। उस उम्र में यूं भी आदमी के पास पछताने के लिए बहुत कुछ होता है।
तान्या को इनकार अंदाज और बात दोनों नागवार गुजरे। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। मैं दादा जान को लेकर आती हूँ। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। फिर किसी की तरफ देखे बगैर वहाँ से चली गई। लाउंज में दाएं और बाएं दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। दाएं तरफ की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल के कवरेट से जुड़ी थी, जबकि बाएं जानिब की बेसमेंट में। बेसमेंट की उन्हीं सीढ़ियों की एक जानिब अजहर फरूकी का कमरा था। तानिया कई बार दस्तकों के बाद भी अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाज़ा खोलिए दादा जान, मगर अंदर खामोशी का राज था। मैं आपको लेने आई हूँ और लिए बगैर नहीं जाऊँगी। जवाब नदार। ठीक है, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है तो ना खोलें, मैं भी यहीं दरवाजे के पास बैठी रहूँगी। और फिर वो दरवाजे के पास दीवार से टिक लगाकर बैठ गई। अगले कुछ और पलों की खामोशी के बाद हल्की से क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। तानिया ने सर उठाकर देखा तो अजहर फरूकी ज़रा से दरवाज़ा खोलकर चेहरा बाहर निकाले उसे ही देख रहे थे। अंदर आ जाओ, इतना कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस मुड़ गए। तानिया अंदर चली गई। बैठो। उन्होंने तानिया से बैठने को कहा तो उसको महसूस हुआ जैसे उनकी आवाज़ रंधी हुई। उनके चेहरे पर आंसू के निशान थे, आंखें झुकार रखी थी। तानिया को अंदाज़ा था कि वो सुर्ख हो रही होंगी। हर बार की कैद तन्हाई के बाद उनकी हालत ऐसे ही दिगरो हुआ करती थी। वो रटारट कर्नल थे और उनके पार अब शख्सियत से जा पसंदी टपकती थी। 70 बरस की उम्र में भी उनकी सेहत काबिल रश्क थी। कुछ सालों से ब्लड प्रेशर के मसले के सिवा उनको कोई परेशानी नहीं हुई। अलबत्ता उम्र की ज़्यादती की वजह से उनके शाने ने कदरे झुक गए, मगर उनके रब दबदबे और शख्सियत से यकसर मुख्तलिफ। तानिया ने हमेशा उन्हें नरम मिजाज ही पाया। उनकी करकराती आवाज़ तानिया ने सरगोशियों जैसी धीमी ही सुनी। घोल मिलाल की एक मुस्तकिल कैफियत उनके सुर्ख व सफ़ेद चेहरे की मकीन थी। फिर भी तानिया को वो चट्टान की तरह मजबूत लगा करते थे, मगर उस वक्त बेहद कमज़ोर और शख्सता दिखाई दे रहे थे। तानिया बेड के कोने पर टेक लगाए वो आहिस्ता से चलते आतिशदान के पास कुर्सी के साथ रखी तपाई तक आए। उस पर खुली पड़ी रेडियो को रेड कॉपर की डायरी उठाई और इसी तरह चलते स्टडी टेबल तक आ गए। डायरी को दराज में रखकर लॉक किया और चाबी हाथ में ले ली। फिर तानिया को मुखातिब किए बगैर कहा, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, और बाथरूम में चले गए। तानिया ने गैर दिलचस्पी से यहाँ वहाँ सर घुमाया, फिर थोड़ी के नीचे हाथ रखकर आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर को देखने लगे। कुछ ही देर में अजहर फरूकी कमरे में आ गए। आओ चले। साथ साथ दोनों को डाइनिंग रूम के दरवाजे से आता देखकर नूरुल हुदा का मुंह की तरफ जाता हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने नवाला प्लेट में रखा और अजीब सी नज़रों से अजहर फ़रूक को देखने लगे। उन्हें कुर्सी पर बिठाते ताने ने अपने पापा को देखा तो ठक गई। दूसरी तरफ नूरुल हुदा ने उसकी निगाहों को महसूस करके आंखें झुकाते हुए प्लेट से नवाला उठाकर मुंह में रखा, मगर उसे निकलने के लिए पानी का सहारा लेना पड़ा। तानिया उन्हें नज़रअंदाज करके खुद भी बैठ गई। अजहर फ़रूक की प्लेट में खाना निकालते हुए इटलाते हुए मरियम से कहा, देखा मम्मा, मैंने कहा था ना दादा जान फ़ौरन आ जाएंगे। दादा जान कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकते। पर जिसकी माननी चाहिए थी उसकी तो उन्होंने नहीं मानी। नूरुल हुदा के लहजे की तरशी को दोनों माँ बेटी ने महसूस किया था, मगर उस घर के गैर एलानिया कवानीन में एक कानून ये भी था कि बाप बेटे के मामले में कोई कभी नहीं बोलेगा। सो वो दोनों खामोश रही, मगर दादा जान के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास छलक पड़ा था। तानिया ने उनके हाथ पर हाथ रखा और गिलास उनके होंठों से लगा दिया। पानी पीते हुए अजहर फ़रूक की आंखें डबडब कर गई। खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए आई तो मोबाइल देखकर उसे शयान का ख्याल आया। बेड पर नीम दराज होते हुए उसने शयान को फ़ोन किया, मगर उसका सेल फ़ोन हस्ब साबिक बंद था। बस बहुत हो गया, अब दोबारा ट्राई नहीं करूँगी। उसने मोबाइल तकिए पर नीचा और दब से लेट गए। पर सुबह कुछ पिलाए और फिर से शयान का नंबर ट्राई करती रही। फ़ाइज़ा प्लीज़, मैं परेशान हो गई हूँ। पहले तो उसने फ़ोन बंद रखा था और अब कॉल तो जाती है, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा। एक तो तानिया, तुम ना ज़रा सी
बात पर परेशान हो जाती हूँ। ये ज़रा सी बात है, वो भड़क गई। पिछले 2 हफ्तों से मैं पागलों की तरह उसे कान मिला रही हूँ और वो जनाब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। भई हो सकता है वो बिज़ी हो। फ़ाइज़ा ने उसे ठंडा करना चाहा, पर वो और भड़क गई। बैठे बिठाए ऐसे एएसपी साहब ने ऐसी क्या मसरूफ़ियत ईजाद कर ली जो फ़ोन नहीं उठा सकते। अब वाह, तुम्हारी सुई तो एक ही जगह पर अटक गया। अब फ़ोन रखो। मेरा बॉस सारा काम छोड़कर मुझे अपनी उल्लू जैसी आंखों से घूर रहा है। नौकरी से निकलवाओगी? ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी ऑफिस में ही बैठी हूँ। वो तुम्हारे पापा का है। जब मेरा बॉस मेरा चाचा बनेगा, बनने को भी तैयार नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे शियान के घर का नंबर दो, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। घर का नंबर क्यों? तान्या ने बेख्तियार दांत पीस कर कहा। वैसे जल्दी जल्दी की रट लगा कर रखी है, मगर क्यों, किस लिए, फिर पूछना ज़रूरी है। फिर कुछ नॉर्मल लहजे में कहा, देखो मोबाइल पर तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा, घर का फ़ोन तो उठाएगा। हाँ, मगर मेरे पास उसके घर का नंबर नहीं है। व्हाट? वो धारी शयान तुम्हारा कज़न है और तुम्हारे पास उसके घर का नंबर नहीं है? मगर वो पुराना वाला है, नया मुझे याद नहीं। मम्मी की डायरी में लिखा होगा। ठीक है, घर पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना। करूँगी, और अब फ़ोन रख दूँ? बाय। तान्या ने फ़ोन रख दिया, तभी किसी ने उसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। हम उसने सर उठाए बगैर कहा। कोई दरवाज़ा खोलकर ऑफिस में आया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके वो तान्या के मुतवज्जो होने का इंतज़ार करने लगा। तान्या ने किसी की आमद को महसूस किया। फिर जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। 17-18 साल का साफ रंगत वाला लंबा मगर दुबला लड़का, गिरे रंगी पैंट पर उसी रंग की शर्ट पहने, बाजू सीने पर लपेटे, ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। तान्या को अपनी तरफ मुतवज्जो होते देखकर वो लंबे लंबे टंग भरता उसकी तरफ आया गया। फिर एक हाथ टेबल पर रखकर झुकते हुए बोला, आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। उसकी बात सुनकर तालियां दिलचस्पी से मुस्कुराई और एक हाथ ओढ़ी के नीचे रखकर वो टेबल पर आगे हुई। उसके अंदाज से बोली, और अगर मैं ना जाऊं तो मैं आपको ज़बरदस्ती कंधों पर उठा कर ले जाऊंगा। वाकई? ताने इत्मीनान से बोली। आजमा ले। उधर उसके इत्मीनान में भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो ठीक है। ताने ने अपनी सीट पर पीछे होते हुए मुस्कुराहट दबाई। उठा कर ले जाओ। अब उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो आंखें सिकरे तान्या को घूरता, फिर सर झटक कर सीधा हुआ और दरवाजे की तरफ मुंह करके ज़ोर से बोला, नंबर दो। अब भी उसकी आवाज़ की बाकशित बाकी थी कि दरवाज़ा खुला और उसकी उम्र और उसी जैसे हुलिये वाला कदरे सांवली रंगत का उसका हम शक्ल कारपेट पर लढ़क गया। फर्श पर पड़े लड़के ने अपने गोलगर्स पेट से उठाए और घुटनों पर से पैंट झाड़कर उठ खड़ा हुआ। अम उम्मेर के बच्चे, तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है मुझे नंबर दो ना कहा करो। उमैर आंखें फाड़े किसी पद की तरह एक ही सिम देखे जा रहा था। अब ये स्टैचू बने क्यों खड़े हो? उसने टोका, फिर खुद भी देखा तो फौरन ही अपने फर्श नशीन होने की वजह समझ आ गई। मारे गए, एकदम उसके मुंह से निकला। उमैर ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ मारा। भाग अजीज। वो दोनों भागकर तान्या की चेयर के पीछे जा छुपे। वो दोनों वो जो दोनों हाथ मुंह पे रखे हंसी रोकने की कोशिश में लोटपोट हो रही थी। बाहर निकलो। तुम दोनों। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर खड़े नूरुल हुदा गुस्से से बोले तो वो दोनों लटके हुए चेहरे के साथ सामने आ गए। उन दोनों को पार्किंग में देखकर ही समझ में आ गया था कि ये सीधा तुम्हारे पास ही आएंगे। मैं तो अंदर था। तुम्हें पता है अजीज़ क्या कर रहा था? ये वजारते घुटनों के बिल बैठे की हॉल से तुम्हारे कमरे में झांक रहे थे। देखो ज़रा इन दोनों की हरकतें। तान्या को पता था उनका गुस्सा मस्नूई है, मगर अपने भाइयों के उतरे चेहरे देखकर बोले, जाने देना पापा, बच्चे हैं। मगर बेटों की रदी होती हालत इतना महफूज कर रही थी कि वो मज़ीद खिंचाई करने के अंदाज में बोली, पहले पूछो इनसे ये दोनों यहाँ क्या कारनामा करने आए थे? अजीज़ जल्दी से बोला, हम कारनामा करने नहीं आए पापा, हम तो आप ही से मिलने आए हैं। सुबह नाश्ते पर इनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए दिल बेचैन सा था। फिर कॉलेज से वापस आकर हमने सोचा आप ही से ऑफिस जाकर मिल लेते हैं। बोले ना उमैर।
आला पाई की बकवास एक्टिंग करते हुए उसने उमैर से मदद मांगी, जो फ़ौरन ही मिल गई। बिल्कुल पापा, ये 2 नंबर ठीक कह रहा है। तुमने फिर मुझे 2 नंबर कहा। अजीज़ सब छोड़कर उसके पीछे पड़ गया। तुम मुझसे पूरे 15 मिनट छोटे हो। 2 नंबर। हाँ अज़ीज़ की हाँ उस कदर मधुरपाना थी जैसे ये बात आज ही उसके इल्म में आई हो। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। नूरुल हुदा उन्हें टोकते हुए ताने की तरफ मुड़े। ये दोनों अगर 5 मिनट ऑफिस में रहे तो भूचाल आ जाएगा और तुम्हें लिए बगैर ये टिकेंगे नहीं। इसलिए तुम इन दोनों के साथ जाओ, तुम्हारा काम तारिक देख लेगा। ओके, तानिया सर हिलाकर बोली तो उमर जल्दी से आगे बढ़ा। हम सिर्फ आप ही को लेने नहीं हैं, आप भी हमारे साथ चले। वो पलटने लगे थे, रुक कर पूछा, खैरियत? दादा जान का बर्थडे है और आप हमेशा भूल जाते हैं, तो हमने सोचा इस बार आपको खुद ही लेने आ जाते हैं। चलिए। सॉरी बेटा, मैं इस बार भी नहीं आ पाऊँगा। एक पल में उनके चेहरे की अजालत तन गए। उमर को बहुत बुरा लगा। क्यों? मेरी फ़ोन इलेक्शन के साथ मीटिंग है, मैं कैसे आ सकता हूँ? अजीज़ बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला। मीटिंग कैंसिल कर दें? समझा करो बेटा, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। तो फिर आपने आज के दिन मीटिंग रखी ही क्यों, जबकि पता है 29 नवंबर को दादा जान का बर्थडे होता है और हम सब मनाते हैं। इससे पहले वो कुछ बोलते तानिया ने कहा, जाने दो अजीज़, पापा नहीं आएंगे। मीटिंग वाकई बहुत अहम है। नूरुल हुदा ने चौंक कर उसे देखा। वो जानते थे कि तानिया जानती है वो जिस फॉरेन इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो कल दोपहर को वापस जा चुका था, और इसी बात ने उन्हें चौंका दिया। फिर उन्होंने तानिया का चेहरा देखा तो समझ गए कि उसने जो कुछ भी कहा है उनका भरण रखने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन पर जिता रही है। वो शर्मिंदा हो गए और पहली बार नहीं हुआ। तानिया ने इशारे से अजीज़ और उमर को चलने के लिए कहा। वो खुद छोटे छोटे कदम उठाती नूरुल हुदा के सामने जा। आप दादा जान का बर्थडे कभी नहीं भूलते हैं ना पापा? उन्होंने बस इसे देखा और चुपचाप वहाँ से चले गए।